So we are continuing our ongoing topic, principles of inheritance and variation. तो इस चैप्टर में अभी तक के हम लोगों ने जो स्टडी किया है वो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस हम लोगों ने स्टडी किया, और कुछ नॉन मेंडेलियन टॉपिक्स भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, multiple allele, pleiotropy. So these are the few topics which we have already studied in the previous lecture. One more topic from the Mendelian inheritance side is remaining. It is the back cross and test cross. Back cross and test cross. Now first we will define the back cross and test cross, then we will see the graphical representation. So for understanding of monohybrid back cross and test cross, let us take the example of one of the experiment performed by Mendel, taking the one character in consideration. For example, in one of his experiment, Mendel took a homozygous tall plant. Suppose this is the homozygous tall plant which is taken after repeated selfing of the selected plant. हम लोगों ने पढ़ा है कि मेंडल हमेशा जो है जब अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करता था तो वो प्योर प्लांट से या होमोजाइगस प्लांट से स्टार्ट करता था. सो टॉल प्लांट when it is crossed with contrasting character of dwarf, तो यहाँ पर इसका जीनोटाइप जो है it is capital TT because it is homozygous and this is small t small t. repeated selfing के बाद में उसने सेलेक्ट किया है तो ये होमोजाइगस रहेगा, ये तो होमोजाइगस ही रहता है, रिसेसिव कैरेक्टर जो होता है. So when the gametes are formed, capital T and small t types of gametes are formed here, and by fusion of the gamete we will obtain the F1 generation. This is the F1 generation, we called it as the F1 monohybrid. Now this F1 monohybrid, as we can see here, genotypically it is the hybrid, capital T and small t. दो एलील्स तो हैं और दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, कॉन्ट्रास्टिंग है genotypically, but phenotypically all the plant, as we know, in the F1 generation they were tall because of the dominance effect of tallness over dwarfness. So to identify the genotype of this F1 plant, इस F1 प्लांट का जीनोटाइप मालूम करने के लिए मेंडल ने जो है टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया था. तो टेस्ट क्रॉस के साथ में एक और उसी की जैसा मिलता जुलता क्रॉस होता है जिसको हम जो है वो बैक क्रॉस बोलते हैं. सो बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस जो होता है इट इज द क्रॉस बिटवीन F1 individual or F1 plant with any one of its homozygous parent. उसके दोनों होमोजाइगस पेरेंट में से किसी एक से भी F1 इंडिविजुअल को क्रॉस करना, इट इज कॉल्ड एज द बैक क्रॉस. तो अगर हम लोग इस F1 इंडिविजुअल F1 टॉल को डॉर्फ या टॉल, ये पेरेंटल जनरेशन के दोनों प्लांट हैं, इनमें से किसी से भी एक से भी क्रॉस करते हैं तो उसको बोला जाता है बैक क्रॉस. नाउ लेट अस टेक बोथ ऑफ दीज टू क्रॉस बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो इसमें से हम लोग जो है पहले ये वाला क्रॉस ले रहे हैं. सपोज हियर वी आर टेकिंग द F1 टॉल. तो अपना जो F1 टॉल प्लांट है वो ये वाला टॉल प्लांट है, कैपिटल T स्मॉल t, और इसको हम लोग जो है वो क्रॉस करते हैं यहाँ पर अभी पेरेंटल टॉल. तो इसको हम लोग लिखेंगे P फॉर पेरेंटल एंड टॉल, पेरेंटल टॉल. This is the parental tall plant. Now this parental tall, it is capital TT. When gametes are formed here, there are two types of gamete will be formed, capital T and small t. And since it is a homozygous tall, so only one type of gamete is formed.
or all the gamete will contain the dominant allele T. When fertilization takes place, this will become capital T, and this will be the capital T and small t. So as now we are observing here, this is the F1 tall plant and this is the parental tall plant. The resultant cross, the individuals which are produced as a result of this cross, this will be the tall capital T homozygous tall, and this is also tall plant. So what we are observing here, two tall plants are crossed, one F1 tall and one parental tall, and what we get, all the progeny are tall. सारे के सारे इंडिविजुअल यहाँ पर जो हमको मिल रहे हैं, ऑफस्प्रिंग्स जो मिल रहे हैं, ये सभी जो है वो टॉल है. सो इट इज सिंपली अ बैक क्रॉस. देन कम टू द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी. सेकेंड जो पॉसिबिलिटी है, ये वाली पॉसिबिलिटी, F1 टॉल को जो है उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करेंगे हम लोग. सो दिस इज F1 टॉल कैपिटल T स्मॉल t, इट इज क्रॉस्ड विद इट्स homozygous recessive parent. This is F1 tall and this is the parental dwarf. now यहाँ पे जो है वो दो गैमेट्स बनेंगे. यहाँ पर सारे के सारे गैमेट्स स्मॉल t टाइप के बनेंगे. This is capital T small t. This is small t. Now what we get here in the offspring generation, all these plants, they are tall because of the presence of one dominant allele, and all small t plant will be always dwarf. So here we can see that in the offspring generation, 50% plants are showing dominant feature and remaining 50% plants are showing recessive feature. So we are getting here the ratio of 1:1. So actually both of these are the back cross, but this particular type of cross is called as the test cross. So simply the back cross means the cross in which F1 individual is crossed with any one of its parental plant, और the F1 individual को अगर हम लोग उसके किसी भी एक पेरेंट से अगर क्रॉस करते हैं तो उसको हम लोग बैक क्रॉस बोलते हैं. और यहाँ पर जो है ये वाला क्रॉस हम लोग देख रहे हैं, दिस इज द टेस्ट क्रॉस. सो टेस्ट क्रॉस के लिए कंडीशन फिक्स है, F1 टॉल प्लांट या F1 इंडिविजुअल को उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करना. सो टेस्ट क्रॉस इज डिफाइंड एज व्हेन F1 प्लांट इज बैक क्रॉस्ड विथ इट्स रिसेसिव पेरेंट, देन इट इज कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस. तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि बैक क्रॉस जो है ये दोनों ही बैक क्रॉस हैं, लेकिन इन दोनों में से जो है ये वाला क्रॉस जो है वो सिर्फ टेस्ट क्रॉस है, क्योंकि टेस्ट क्रॉस के लिए कंडीशन है. क्या कंडीशन है? पेरेंटल जो रिसेसिव प्लांट है उससे क्रॉस करना F1 को. सो व्हेन F1 इज क्रॉस्ड विथ इट्स रिसेसिव पेरेंट, देन ओनली इट इज कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस. अदरवाइज both of these two cross, they are the back cross. So we can say the test cross is also a type of back cross. So that's why it is said that all the test crosses are the back cross. But all back cross is not necessary a test cross. सारे टेस्ट क्रॉस जो है वो बैक क्रॉस तो होंगे, क्योंकि बैक क्रॉस की डेफिनेशन तो सिर्फ इतनी सी है, F1 इंडिविजुअल को उसके दोनों पेरेंट में से किसी भी पेरेंट से क्रॉस करना. और टेस्ट क्रॉस के लिए जो है कंडीशन है जहां पर हम लोग F1 इंडिविजुअल को उसके रिसेसिव पेरेंट से ही क्रॉस करेंगे. सो दिस इज द टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस. अभी ये टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस क्या है?
टेस्ट क्रॉस का सिग्निफिकेंस ये है कि इससे हमको जो है जो पेरेंटल जो F1 टॉल होता है, जो F1 प्लांट होता है, जो भी हो, हमने जो भी कैरेक्टर लिया है, जो अपना F1 प्लांट होता है, इस F1 प्लांट का जीनोटाइप मालूम हो जाता है। सो F1 प्लांट का जीनोटाइप मालूम करने के लिए मेंडल ने जो है टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किए थे। तो यहाँ पर एक चीज कंफर्म होती है पहले से कि जो डॉर्फ प्लांट है, ये डॉर्फ प्लांट जो है इसके पास में 2 रिसेसिव एलील है, स्मॉल टी। लेकिन जो टॉल प्लांट होगा यहाँ पर, ये टॉल प्लांट जो रहेगा, इसके पास में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है इसके पास में कैपिटल टी अलील हो या कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी अलील हो। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है। अब ये 2 पॉसिबिलिटी में से एक को एक्सक्लूड करने के लिए और दूसरे को कंफर्म करने के लिए टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पर हमको जो है टॉल और डॉर्फ, मतलब 50% टॉल और 50% डॉर्फ मिलने का मतलब ये है कि ये वाला जो यहाँ पर जो डॉर्फ है इसके पास में 2 स्मॉल टी अलील है। तो इससे क्या समझ में आता है अपने को? इससे ये समझ में आता है कि एक स्मॉल टी अलील जो है वो ये पेरेंटल डॉर्फ प्लांट के पास से आई होगी और दूसरी स्मॉल टी अलील जो है वो ये पेरेंटल F1 जो है वो टॉल प्लांट के पास से आई होगी। तो इससे ये चीज कंफर्म होती है कि इस F1 टॉल प्लांट के पास में एक जो है वो रिसेसिव अलील भी प्रेजेंट है और फिर भी वो टॉल है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास में एक डोमिनेंट अलील है, वो डोमिनेंट अलील जो है वो रिसेसिव अलील को सप्रेस कर रही है। सो दीज आर द 2 क्रॉसेस। दिस इज सिंपली अ बैक क्रॉस एंड दैट क्रॉस इज द टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस भी जो है वो एक टाइप का बैक क्रॉस होता है, मतलब इसको हम लोग बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों बोल सकते हैं, लेकिन यूजुअली उसको ही टेस्ट क्रॉस बोलते हैं और इसको बैक क्रॉस बोलते हैं, अदरवाइज दोनों ही जो है वो बैक क्रॉस है। तो ये यहाँ तक के हमारा जो है वो मेंडेलियन और नॉन मेंडेलियन के कुछ टॉपिक्स जो है हमने कवर कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी आर मूविंग विथ द मॉडर्न जेनेटिक्स टॉपिक and it is the chromosomal theory. So first we will study about the chromosomal theory of inheritance. So chromosomal theory of inheritance, it was given in 1900, in the early 1900, and it was given by सोटन एंड बोवेल। ये 2 साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने इस थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था और मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, दोज एक्सपेरिमेंट्स दे वर परफॉर्म इन 1856 और 7 इयर्स तक के उसने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे और फिर उसके बाद में कुछ इयर्स के बाद में उसकी डेथ हो गई थी। तो उसका जो वर्क था, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट जो उसने परफॉर्म किए थे उसको उसने लिखा भी था, उसका जो पूरा पेपर था उसको आगे 35 और 40 इयर्स तक के जो है वो किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। अर्ली 1900 के टाइम पर, यानी जब 20th सेंचुरी की बिगिनिंग हुई, तो उस टाइम पर जो है 3 अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने उसके वर्क को फिर से रीडिस्कवर किया। सो दीज 3 साइंटिस्ट, जो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसके वर्क को रीडिस्कवर किया था, इनके नाम हमको जो है वो याद रखना है, कभी पेपर में पूछता भी है। सो दे आर डी वेरिस,
Hugo de Varies, Karl Correns, and Eric Shermark. So these were the three scientists who rediscover or who discovered the Mendel's work इंडिपेंडेंटली. तीनों ने जो है वो मेंडल के ही वर्क को रिडिस्कवर किया और उसके बाद में इन्होंने फिर उसको पब्लिश किया. तो जब उसको पब्लिश किया तो एक बुक के फॉर्मेट में उसको पब्लिश किया था जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. पर इन्होंने जो है वो पूरा का पूरा जो क्रेडिट था वो मेंडल को दिया था. मतलब रिडिस्कवरी इनकी थी लेकिन इन्होंने उसको मेंडल के नाम से उसके बुकलेट को पब्लिश किया था. तो फिर जो है अर्ली 20वीं सेंचुरी के टाइम पे दुनिया ने मेंडल को पहचाना और मेंडल की उस वक्त जो है वो डेथ हो चुकी थी. उसके बाद जब उसके वर्क की रिडिस्कवरी हुई तो फिर उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स का जो है वो टाइटल दिया गया. सो मेंडल के रिडिस्कवरी के बाद में, मेंडल के वर्क की रिडिस्कवरी के बाद में फौरन ही जो है फिर क्रोमोसोम के ऊपर जो है रिसर्च स्टार्ट हो गया. अब इसमें 1902 के टाइम पर 1902 में दो साइंटिस्ट थे. इन लोगों ने क्रोमोसोमल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया. क्रोमोसोमल थ्योरी इन 1902 बाय वॉल्टर सूटन एंड थियोडोर बोवेरी. So these were the scientists who formulated the chromosomal theory. तो chromosomal theory को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. इनके नाम याद रख लो 1902 में. तो इस थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो बेसिक पॉइंट्स इसके अंदर जो है हम लोग इसके पहले भी जो है लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं कहीं ना कहीं क्रोमोसोम्स के बारे में. सो बेसिक पॉइंट्स ये हैं कि गैमेट्स जो होते हैं दे कंटेन द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. सो द इंडिविजुअल जो होता है उसके जो बॉडी सेल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज सोमेटिक सेल्स एंड दो सोमेटिक सेल्स इन ईच सेल द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर. क्रोमोसोम जो है वो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं हमारे बॉडी सेल्स में या सोमेटिक सेल में. व्हेन स्पेशल टाइप ऑफ सोमेटिक सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन व्हिच आर कॉल्ड एज गोनैड्स. तो गोनैड्स के अंदर जो स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स या सोमेटिक सेल्स जो होते हैं दे विल प्रोड्यूस द गैमेट्स एंड गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं. सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम का और फिर उसके बाद में जो गैमेट्स होते हैं वो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करते हैं अपने पेरेंटल सेल के कंपैरिजन में. और फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है सो फर्टिलाइजेशन इट रीस्टोर्स द डिप्लॉयड कंडीशन. डिप्लॉयड कंडीशन को फर्टिलाइजेशन की वजह से जो है वो रिटर्न आ जाती है जनरेशन में. तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर होता है वो जीन के बिहेवियर के पैरेलल होता है क्योंकि बाद में ये मालूम पड़ा कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी. एलील्स और जो जीन होते हैं दे आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं. क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है. सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन होता है जैसा कि मेंडल ने भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया था. बट मेंडल ने वर्ड क्रोमोसोम तो यूज नहीं किया था. मेंडल ने ये बताया था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स को डिनोट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं और जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर वो फैक्टर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं. लेटर ऑन व्हेन द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस then it was said that कि जो एलील्स हैं या जिसको मेंडल ने जो है फैक्टर का नाम दिया था they are located on the chromosome. क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है और जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं एंड ड्यूरिंग सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम since the factors are located on the chromosome and when chromosome gets segregated then it is obvious that alleles or factors in terms of Mendel they get also segregated. वो भी segregate होंगे factors भी.
तो इसी को, और फिर जब फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो वापस से जो हैप्लॉइड गैमेट के अंदर जो सिंगल सिंगल फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, वो वापस से यूनाइट होते हैं और फिर इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं। तो कैरेक्टर्स जो है वो कैसे आएंगे, ये डिपेंड करता है जीन के इंटरेक्शन पे, मतलब जीन आपस में या अलील आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ हमने जो है वो जीन इंटरेक्शन के कुछ फिनोमेना स्टडी किए हैं, जैसे कंप्लीट डोमिनेंस देखा है। तो अगर एक पर्टिकुलर अलील जो है वो दूसरे अलील के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंस इफेक्ट रखता है तो वो अलील एक्सप्रेस होगा, और दूसरा वाला जो है अलील जो रेसेसिव होगा वो एक्सप्रेस नहीं होगा। फिर हो सकता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, या हो सकता है कि को डोमिनेंस हो। फिर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है जिसको हम लोग जो है वो इंटरजेनिक इंटरेक्शन बोलते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट हो सकता है अलील का, या कि फिर सप्लीमेंट्री इफेक्ट हो सकता है अलील का। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जीन इंटरेक्शंस होते हैं। एंड विद आफ्टर इंटरेक्शन ऑफ द जीन, जो कैरेक्टर है वो फिर एक्सप्रेस होता है इंडिविजुअल की बॉडी में। तो यहाँ अभी अपने को जो है हमको देखना है कि मियोसिस के टाइम पर जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स को जो है वो कैसे सेग्रीगेट करते हैं, क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम जो था वो इस थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग उसको जो है अभी प्रोजेक्टर पर एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। So as here we are seeing on the projector, it is the diagram which represents the movement of the chromosome during the anaphase of meiosis 1 and anaphase of meiosis 2. So this diagram, it suggests that the movement of chromosome is parallel to the movement of gene. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में, मियोसिस एंड जर्म सेल्स फॉर्मेशन इन अ सेल विथ 4 क्रोमोसोम। कैन यू सी हाउ क्रोमोसोम सेग्रीगेट व्हेन जर्म सेल्स आर फॉर्म। ना यहाँ पर देखो, फर्स्ट जो डायग्राम है, इट इज द G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल की जो है ये G1 फेज है, और ये एक सेल दिखाया हुआ है जो कि डिप्लॉइड सेल है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं दिस इज 1 पेयर एंड दिस इज द अनदर पेयर। सो 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर दिखाए हुए हैं। फिर उसके बाद में G1 के बाद में नेक्स्ट जो फेज आती है, हम लोगों ने स्टडी किया 11th में उसको, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल वाले टॉपिक में, एस फेज। तो G1 और G2 फेज के बीच में, यहाँ पर बीच में कहीं पर जो है एक और फेज होती है जिसको हम लोग कहते हैं एस फेज। तो रिकॉल करो कि एस फेज में कौन से इवेंट या कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। तो एस फेज में हमने स्टडी किया, वहां पर ड्यूरिंग एस फेज द क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम होते हैं इसके ऊपर जितना भी डीएनए लोकेटेड होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट डीएनए गेट रेप्लिकेटेड। पूरा का पूरा डीएनए जो है यहाँ पर रेप्लिकेट होता है या डुप्लीकेट होता है। So DNA duplication or DNA replication takes place in S phase. तो S phase में जब DNA रेप्लिकेट होता है तो यहाँ पर देखो ये सिंगल क्रोमेटिड दिखाया हुआ है, और ये भी एक क्रोमोसोम का जो है वो एक सिंगल क्रोमेटिड है। जब DNA रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो सेल जो है वो नेक्स्ट साइकिल में इंटर होता है, एंड दैट साइकिल, दैट फेज ऑफ द साइकिल, इट इज कॉल्ड एज द G2 फेज। उसको हम लोग सेकेंड ग्रोथ फेज बोलते हैं या सेकेंड गैप फेज भी बोलते हैं। पहले उसको बोलते थे सेकेंड गैप फेज, अभी उसको सेकेंड ग्रोथ फेज बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये एक सिंगल क्रोमेटिड है, ये वाला भी एक सिंगल क्रोमेटिड है क्रोमोसोम का, होमोलोगस क्रोमोसोम का। अब यहाँ G2 में हम लोग देख सकते हैं इसके जैसा एक और क्रोमेटिड यहाँ पर आ गया है। तो ये कैसे आ गया, ये दो सेम जो है वो क्रोमेटिड आ गए, यहाँ पे दोनों हेल्ड हैं बीच में इस पर्टिकुलर पॉइंट से, मतलब उसके सेंट्रोमियर से हेल्ड हैं। सो
ये हुआ है ड्यू टू द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो एस फेज में डुप्लीकेट हुआ है, पूरा रेप्लिकेट हुआ है, और उसकी वजह से यहाँ पर जो एक सिंगल क्रोमेटिड था, अब यहाँ पर दो क्रोमेटिड एक दूसरे से हेल्ड है, जॉइंटेड है बाय मींस ऑफ दिस पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द बाइवेलेंट। तो यहाँ पे बाइवेलेंट फॉर्मेशन हो गया है। अब ये वाले क्रोमोसोम का भी यहाँ पर बाइवेलेंट फॉर्मेशन हुआ, इसका भी बाइवेलेंट हुआ, फिर ये इसका बाइवेलेंट हो गया, ये वाला इसका बाइवेलेंट है, एक जैसे कलर से यहाँ पर शो किया हुआ है। देन द वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट टेक्स प्लेस इन द एनाफेज ऑफ द मियोसिस 1। सो एज वी ऑल नो कि मियोसिस 1 के एनाफेज में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, दोज होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे गेट सेग्रीगेटेड। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेग्रीगेट होंगे यहाँ पर। सो इन द एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 this homologous chromosome will get segregated from this one and this homolog will get segregated from this one। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको इस तरह से शो किया एरो मार्क से, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो है वो सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा एक, और उसका डॉटर सेंट्रियोल यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर्स बने होंगे, एंड दोज स्पिंडल फाइबर विल पुल दीज होमोलोगस क्रोमोसोम टू द अपोजिट पोल। तो ये सेग्रीगेशन है, इसको हम लोग सेग्रीगेशन या कि इसी को हम लोग कहते हैं डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। सो दिस इज द डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। देन अब ये डिसजंक्शन हो गया, फिर ये वाला और ये वाला क्रोमोसोम दोनों इस एक वहां जो डॉटर सेल इसके बाद बनेगा वहां पहुंच जाएंगे, ये दोनों दूसरे डॉटर न्यूक्लियस में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट जो इवेंट है उसके बाद में वो है मियोसिस 2 के एनाफेज में। एनाफेज ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि प्रोफेज और मेटाफेज में जो है वो सेम प्रोसेसेस होते हैं जैसा कि माइटोसिस में होता है। तो यहाँ पे मियोसिस 2 के एनाफेज में हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला पूरा, ये दोनों जो है वो इसके अंदर दिखाए हुए हैं, और ये दोनों जो है वो इसके अंदर दिखाए हुए हैं। अगेन यहाँ पर जो है मियोसिस 2 के अंदर, मियोसिस 2 के एनाफेज में ये यहाँ पे सेंट्रोमियर जो है यहाँ पर डिवाइड होगा। तो सेंट्रोमियर का डिवीजन हो गया, इसके सेंट्रोमियर का, इसके और इसके सभी के सेंट्रोमियर का डिवीजन हो गया। और सेंट्रोमियर के डिवीजन होने के बाद में ये जो पूरा क्रोमेटिड है, ये वाला क्रोमेटिड फिर एक सेल के न्यूक्लियस में जाएगा, और इसका जो दूसरा क्रोमेटिड है वो दूसरे सेल के न्यूक्लियस में जाएगा। अब हम इसको जो है वो फिर क्रोमेटिड नहीं बोलेंगे, इसको हम क्रोमोसोम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका अपना सेंट्रोमियर है और यहाँ पर इसका अपना सेंट्रोमियर है। सेम ऐसे ही जो है इस वाले क्रोमोसोम के पेयर में भी हम देख सकते हैं कि ये दोनों क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं और ये दोनों डॉटर न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। सेम इवेंट यहाँ पर भी हो रहा है, इसके अंदर भी। तो फाइनली अपने को आखिरी में मियोसिस के, अगर आपको याद होगा, रिकॉल कर सकते हो कि मियोसिस के एंड में वी ऑब्टेन 4 सेल्स, हमको जो है वो आखिरी में 4 सेल्स मिलते हैं, एंड दोज 4 सेल्स लेटर ऑन by some transformational changes, थोड़ा चेंज होने के बाद में those cells they are converted into gametes, वो gametes में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम देखो ये 4 सेल्स जो देख रहे हैं, हर एक के अंदर हम लोग क्रोमोसोम देख रहे हैं। इसके कंपेयर अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर हमको हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं। यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 मीन्स 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमको मिल रहा है। तो दीज आर द 4 हैप्लॉइड सेल्स, ये जो 4 के 4 सेल्स हैं दे आर द हैप्लॉइड सेल। तो यहाँ जो है वो एक्चुअल में इस डायग्राम का जो मेन इंटेंशन है वो यही है कि क्रोमोसोम्स जो है वो सेग्रीगेट कैसे होते हैं। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, जब जर्म सेल्स फॉर्म होते हैं, तो क्रोमोसोम का जो है वो सेग्रीगेशन कैसे होता है, इसी को मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला था। लेकिन मेंडल ने जो है वो क्रोमोसोम को इमेजिन करके नहीं बोला था, उसके हिसाब से जो है वो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते होंगे न्यूक्लियस के अंदर, और एक जैसे दिखने वाले जो है वो पार्टिकल 2 बार होते होंगे, और फिर जब सेग्रीगेशन होता होगा, मियोसिस होता होगा, तो वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे से अलग हो जाते होंगे। आगे जाकर के ये मालूम पड़ा कि पार्टिकल जैसी तो कोई चीज नहीं होती है, बल्कि ये ऐसे स्पिंडल शेप्ड जो है वो बॉडीज होते हैं, जिसको
नाम दिया गया था क्रोमोसोम्स। सो इसको स्टेनिंग टेक्निक से आइडेंटिफाई किया था, और इसको जो है क्रोमा का मतलब होता है कलर और जोमा मतलब होता है बॉडी, सो दे आर द कलर बॉडीज। जब स्टेन डेवलप हुआ तो फिर ये मालूम पड़ा कि दे कैन बी स्टेन बाय सम स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्टेन। तो न्यूक्लियर स्टेन की मदद से उसको स्टेनिंग करके आइडेंटिफाई किए थे। और जो वर्ड क्रोमोसोम था इट वाज गिवन बाय वाल्डियर। वाल्डियर नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्रोमोसोम का वर्ड इंट्रोड्यूस किया था। तो इस डायग्राम में हमने देखा कि आखिरी में जो 4 सेल्स अपने को मिल रहे हैं, ये 4 सेल्स जो है दे आर कॉल्ड द जर्म सेल्स। आगे जाकर के ये जर्म सेल्स जो है वो गैमेट्स बनाएंगे। अब अगर ये पूरा प्रोसेस जो है वो मेल की बॉडी में हो रहा है तो ये आगे जाकर के स्पर्म्स बनाएंगे, और अगर ये पूरा प्रोसेस जो है फीमेल की बॉडी में हो रहा है तो इससे आगे जाकर के फिर ओवम बनेगा। और स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, ये दोनों प्रोसेस हमको जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में स्टडी करने हैं। तो हमको पता है कि स्पर्म्स तो सभी से बन जाएंगे अगर मेल के अंदर है, और अगर ये प्रोसेस फीमेल में हो रहा है तो ओवम जो है वो एक ही से बनेगा, बाकी जो है वो पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो टॉपिक्स जो है हमको लिंक करना है इस चैप्टर से, हमको स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, इस कंसेप्ट से हमको स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस को लिंक करना है टॉपिक को। तो हमको जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका कंसेप्ट भी, और इसके आगे जो हम लोग स्टडी करेंगे वहां पर वो भी। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द इंटायर सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में ये क्रोमोसोम का बिहेवियर हमने देख लिया। अब एक टेबल जो है वो आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो टेबल जो दिया हुआ है वो है पेज नंबर 82 पर, आप लोग देख सकते हैं वो टेबल। आप लोग देखिए तो वहां पर जो है एक कॉलम में ए लिखा हुआ है और दूसरे कॉलम में जो है वो बी लिखा हुआ है। तो ए और बी ये 2 कॉलम्स हैं। स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में जो है इस तरह से उसको अलग अलग सेपरेट करके तो नहीं दिखाया है, बट अगर आप उसको उसके स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे तो उसके स्टेटमेंट को रीड करने के बाद में आपको लगेगा कि सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो नियर अबाउट जो है वो सेम है, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है वो थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है वो बहुत गौर से पढ़ें और उसको ध्यान से देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो पहले वाले कॉलम में जो है लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और दूसरे वाले कॉलम में लिखा हुआ है वन पेयर सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। तो इस तरह से उसमें लिखा हुआ है ना, और नीचे एक क्वेश्चन डाला हुआ है। तो जो क्वेश्चन नीचे डाला हुआ है वो क्वेश्चन है कैन यू टेल विच ऑफ दीज कॉलम ए और बी रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड विच रिप्रेजेंट द जीन, हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस। तो इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो यहां पर जो है थर्ड वाले कॉलम में ही आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। इंडिपेंडेंट पेयर्स का जो वर्ड आया है सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। ये जो है कॉलम ए ये क्रोमोसोम के लिए कॉलम है, और कॉलम बी जो है ये जीन के लिए कॉलम है। तो अब इसी को लेकर के एक और डायग्राम जो है वो पेज नंबर 82 पर ही दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन किया गया है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है हमने पढ़ा, इट वाज गिवन बाय मेंडल। मेंडल का जो है वो थर्ड लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल ने उसको फॉर्मुलेट किया था। यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ तो नहीं है, बट फिर भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो कैसे वर्क करता है क्रोमोसोम के लेवल पर, क्योंकि मेंडल ने जो डिस्क्राइब किया था वो फैक्टर के लेवल पर डिस्क्राइब किया, और क्रोमोसोमल थ्योरी इंट्रोड्यूस होने के बाद में उसको फिर जो है वो क्रोमोसोम के टर्म्स में डिस्क्राइब किया गया। तो हम उसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ओके, सो यहां पर पहले 2 पॉसिबिलिटीज बताए हुए हैं। सो पॉसिबिलिटी नंबर 1 एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी। सो द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज one long orange and short green chromosome and long yellow and short red chromosome at the same pole। तो
इसको रीड करके हमको जो इस डायग्राम से उसको कोरिलेट करना है। तो मियोसिस 1 का एनाफेज यहां पर दिखाया हुआ है, मियोसिस 1 का एनाफेज, मतलब ये क्या है, ये एनाफेज 1 है, दिस इज एनाफेज 1। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एक क्रोमोसोम को जो है वो ऑरेंज कलर से और एक क्रोमोसोम को येलो कलर से शो किया हुआ है, और उसके बाद में इसका यहाँ पर एक क्रोमोसोम जो है वो ग्रीन और एक जो है वो रेड है। अब पहले हम लोग ये वाला कॉलम देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग सेकंड पॉसिबिलिटी देखेंगे। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, ओके, तो मियोसिस 1 में क्या हो रहा है कि ये दोनों क्रोमोसोम जो है ये दोनों क्रोमोसोम से सेग्रीगेट हो रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखें तो ये इस तरह से ऐसे मार्किंग करके लिखा है, मींस बोथ ऑफ दीज दे आर पुल्ड टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, ये अपोजिट पोल की तरफ जो है वो पुल हो रहे हैं। फिर उसके बाद में देखो ये वाले डायग्राम में मियोसिस 2 में क्या हो रहा है, मियोसिस 2 में अब ये दो सेल तो बन गए हैं, ये दोनों सेल बन गए, न्यूक्लियस बन गए मियोसिस 1 के टेलोफेज के बाद में। नेक्स्ट क्या होगा मियोसिस 2 में, फिर से ये वाला जो ये पहले सिंगल क्रोमोसोम था बाइवेलेंट के साथ में था, तो अब यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, जो इसके पहले का डायग्राम था उसी से हम लोग जो है वो इस डायग्राम को कोरिलेट करके स्टडी करेंगे, तो हमको समझ में आ जाएगा। ये क्रोमेटिड जो है वो इस क्रोमेटिड से सेपरेट हो रहा है, इसका ये वाला क्रोमेटिड इस वाले क्रोमेटिड से सेपरेट हो रहा है। सेम जो है वो सेकंड वाले सेल में भी हो रहा है। यहाँ पर ये वाला जो क्रोमेटिड है वो इस क्रोमेटिड से सेपरेट हो रहा है, और ये दोनों होमोलॉग हैं, ये दोनों भी सेपरेट हो रहे हैं और अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पर 4 जर्म सेल्स जो है यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं। अब ये 4 जर्म सेल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे देखो ये ऑरेंज के साथ में ये एक ग्रीन, दूसरे वाले सेल के अंदर भी ऑरेंज के साथ में ग्रीन, और यहाँ पर येलो के साथ में रेड, येलो के साथ में रेड। तो ये 4 जर्म सेल के अंदर कैसा कॉम्बिनेशन है हमारा। ये जो कलर है ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हुआ है, ऐसा कोई क्रोमोसोम का अपना कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता, उसको स्टेनिंग करने के बाद में उसका कलर आता है, पर ये यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम में जो है ये कलर दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर ऑरेंज के साथ में ग्रीन का सेग्रीगेशन और येलो के साथ में रेड का सेग्रीगेशन हो रहा है। ये एक चीज जो है वो हमको याद रखना है, जो कि हमको वहां पर कोरिलेट करना रहेगा सेकेंड वाले डायग्राम में। तो ऑरेंज के साथ में ग्रीन सेग्रीगेट हो रहा है, मतलब ऑरेंज के साथ में इस तरफ से ग्रीन वाला जा रहा है और इसके साथ भी ग्रीन जा रहा है। यहाँ पर येलो के साथ में रेड, येलो के साथ में रेड जा रहा है। हो गया ये इतना, तो ये पहली पॉसिबिलिटी हो जाती है। अब दूसरे वाले डायग्राम में हम लोग देखेंगे सेकेंड पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर देखो पहले तो ऊपर जो स्टेटमेंट दिखाया हुआ है वो है 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम, एक लॉन्ग ऑरेंज है और शॉर्ट वाला जो है वो रेड है, यहाँ पर भी वैसे ही था। एंड लॉन्ग येलो, येलो लॉन्ग है और शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम है। और फिर यहाँ मियोसिस 1 में सेग्रीगेशन, ये दोनों साथ में जा रहे हैं, ये दोनों साथ में जा रहे हैं। इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे अभी, तो येलो के साथ में ऑरेंज के साथ में यहाँ पर देखे हम लोग तो ये यहाँ पर रेड गया हुआ है, और येलो के साथ में हम लोग यहाँ देखेंगे तो ग्रीन गया हुआ है। थोड़ा जूम आउट कर दो श्वेता सर। हाँ देखो ये दोनों को कंपेयर करके देख लो। यहाँ पर ऑरेंज ग्रीन, यहाँ पर ऑरेंज के साथ में रेड है, येलो के साथ में यहाँ पर रेड है, और इस पॉसिबिलिटी के अंदर येलो के साथ में गया हुआ है ग्रीन। और फिर उसके बाद में मियोसिस 2 के एनाफेज में ये इससे अलग हो जाएगा, और ये वाला रेड दूसरे वाले होमोलोगस रेड से अलग हो जाएगा। ऐसे ही येलो येलो से अलग हो जाएगा, और ग्रीन दूसरे वाले ग्रीन होमोलॉग से सेपरेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो 4 जर्म सेल्स बन रहे हैं, तो ये 4 जर्म सेल्स को अगर हम लोग इससे कंपेयर करके देखते हैं तो हमको समझ में आएगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसको बोला जाता है। यहाँ पे ऑरेंज के साथ में रेड दिख रहा है और येलो के साथ में ऑरेंज के साथ में ग्रीन दिख रहा है और येलो के साथ में रेड दिख रहा है। इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो हमको रिवर्स दिख रहा है, ऑरेंज के साथ में जो है वो रेड वाला आ गया है 2 सेल के अंदर, और येलो के साथ में जो है यहाँ पर ग्रीन वाला चला गया है। तो इसी को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग जो है इस ऑरेंज क्रोमोसोम, ऑरेंज कलर से जो शो किया हुआ क्रोमोसोम है इसको, और ये रेड वाले को
अगर हम लोग दोनों को आपस में कंपेयर करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो रेड वाले के साथ में ग्रीन वाला ही जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। पर इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑरेंज के साथ में इस तरफ से रेड वाला आ गया है, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं येलो के साथ में रेड गया। तो इसको देख करके अगर कोई ये सोचे कि जहां जहां पे जिस सेल में येलो वाला क्रोमोसोम जाएगा तो दूसरे वाले होमोलॉग से जो है वो रेड वाला ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं तो एक होमोलॉग पेयर का और येलो वाला आ गया, तो दूसरे होमोलॉग का जो है यहाँ पर इसके साथ में येलो के साथ में ग्रीन आ गया है, और यहाँ पर येलो के साथ में रेड है, और यहाँ पर जो है वो ऑरेंज के साथ में ग्रीन आ गया, और यहाँ पे ऑरेंज के साथ में जो है वो रेड आ गया है। तो इसी को बोला जाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कि क्रोमोसोम्स के जो पेयर हैं वो सेपरेट होते हैं और फिर इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली हम बोलेंगे कि दूसरे क्रोमोसोम के साथ में जर्म सेल्स के अंदर इंटर होते हैं, और फिर यही जर्म सेल्स जो हैं ये आगे जाकर के फिर गैमेट्स बनाते हैं। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये है कि आगे की जनरेशन में जो है वो वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशन लाने के लिए और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। एक ये फैक्टर है, ऐसे ही म्यूटेशन होता है उसकी वजह से भी वेरिएशंस आते हैं, और ऐसे ही क्रॉसिंग ओवर होता है वो उसकी वजह से भी वेरिएशन आते हैं। कैन यू रिकॉल एट विच फेज ऑफ मियोसिस द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस? क्रॉसिंग ओवर जो है वो मियोसिस की कौन सी फेज पर होता है, जरा सोचो और रिकॉल करो, क्योंकि इसको भी हमने जो है वो सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में स्टडी किया है। सो मियोसिस 1 के पैचिटीन स्टेज में, प्रोफेज के पैचिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर जो है वो प्रोसेस होता है, उसकी वजह से भी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से आगे की जनरेशन में जो है वेरिएशंस आ जाते हैं। तो यहाँ तक के जो है वो हम लोगों ने इसको स्टडी किया है। नेक्स्ट हमको जो स्टडी करना है वो है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के, देखते हैं उसको।